Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Aanchal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, as you know that we have completed second unit of our GK in the last session, and today we are going to start with the third one. Okay, so let's start with the third one. The third unit is things around me. So this is the name of your third unit. Okay, so there are certain chapters that are given in this unit as well. So sorry. So the first chapter is how green and clean is your neighborhood. Okay, so this is the first chapter. So दिस इज़ जस्ट काइंड ऑफ क्वेश्चनर, ये क्वेश्चनर के फॉर्म में बेटा, तो इसमें आपको येस और नो में आंसर देना है. ठीक है, तो आपको अपनी सराउंडिंग्स अगल बगल ध्यान देते हुए बताना है कि क्या आपके जो भी वहाँ पे सर्कमस्टांसेस या जो भी कंडीशंस दी हुई हैं कि अगर आपके घर के बगल में हाँ पेड़ हैं, कितने पेड़ हैं, ऑल दीज थिंग्स आर गिवन. सो दिस क्वेश्चन, दिस पेज नंबर 28 दैट यू आर गोइंग टू डू बाय योरसेल्फ, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट योर नेबरहुड. आपके अगल बगल, आपके पड़ोसी, आपके नेबर्स, आपकी एनवायरमेंट, सराउंडिंग्स के बारे में है. सो एवरीबडी हैज़ डिफरेंट सराउंडिंग्स, डिफरेंट नेबर्स. सो दैट्स वाई this chapter you are going to do by yourself. Okay, and now we are moving to the next topic, that is machines at work, given at page number 30. So I'm starting with the next topic, that is machines at work, given at page number 30. So let's begin with it. Okay, so I'll just write on the topic here, that is machines at work, given at page number 30. So this is the name of the topic, machines at work. So what is the meaning of machines at work? So you know there are certain machines that are being used for different works. ठीक है, अलग अलग कामों के लिए बहुत सारी मशीन्स हैं जो कि यूज़ की जाती है. वी यूज़ डिफरेंट मशीन्स इन अवर डेली लाइफ एज वेल. तो हम अपने जैसे किचन में कोई काम करना होता है उसके लिए हम लोग किचन आइटम, जिसको हम किचन अप्लायंसेस बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर आपको कोई ऑफिशियल वर्क करना हो, फॉर दैट वी यूज़ लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, टैबलेट्स. ओके, सो ऐसे ही कुछ काम है जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स होते हैं. दे आर कंस्ट्रक्शन वर्क्स. कंस्ट्रक्शन वर्क्स मीन्स व्हेन अ बिल्डिंग इज, अगर आपका घर कभी बनता है, इफ़ यू आर हैविंग अ न्यू हाउस और इफ़ यू आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस, तो आपने देखा होगा घर बनाने में बहुत सारी मशीन्स यूज़ करते हैं. ओके, बिल्डिंग्स, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, तो स्पेशली जब उनकी कंस्ट्रक्शन होती है तो आपने देखा होगा वो बहुत सारी वहाँ मशीन्स होती हैं, सीमेंट मिक्सचर, बुलडोज़र, क्रेन एंड ऑल दोज थिंग्स. ओके, सो ये सब मशीन्स है, दे आर हेल्पफुल when the very helpful when the machine is being built, sorry, when the building is was built. तो जब बिल्डिंग बनती है तो ये सारी मशीन्स हैं वो हेल्प करती हैं. ओके, सो वैसे ही देर आर सर्टन अदर मशीन्स अदर देन दोज आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन के अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जो कि हमारी, दे हैव इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ. ओके, सो at the heading it is given, these vehicles help us to do different kinds of work. Name them with the help of the given clues and the pictures. Choose your answers from the help box. Okay, so जिन machines के हम नीचे बात कर रहे हैं वो अलग अलग vehicles हैं जो कि हमारी life में useful हैं, and somehow they have helped us, they have made our life easier. Okay, so we are going to discuss about all these different machines with the help of the examples, sorry, with the help of the clues that are given about them. तो उनके बारे में कुछ clues दिए हुए हैं, and as उनकी help से हम इनका answers we are going to find out. And other than that there are certain what we call it, the help box is also given, जिसकी help से हम अपने जो questions हैं उसके answers के spellings भी आप check कर सकते हैं. Okay, starting with the first one, whenever there is a fire, the dash rushes to put it out. It carries powerful pumps and long hoses to shoot water at the fire. So next जिस मशीन की हम बात कर रहे हैं, जब भी कहीं आग लगती है तो इस मशीन को बुलाया जाता है. इसके अंदर लंबी लंबी पाइप्स होती हैं, पानी होता है
और ये यूज़ होती है फॉर पुटिंग ऑफ फायर। पुटिंग ऑफ फायर मीन्स आग को बुझाने के लिए। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस मशीन? सो दिस मशीन इज़ फायर इंजन, जिसको आप लोग फायर ब्रिगेड बोलते हैं। ओके, सो दिस फायर ब्रिगेड इज और फायर इंजन इज यूज टू पुट ऑफ फायर वेन एवर देयर इज अ केस ऑफ फायर, कहीं पे भी अगर आग लगती है। सो दिस इज वन ऑफ द एमरजेंसी सर्विसेज, ठीक है, एक एमरजेंसी सर्विस है। तो अगर वो ऐसी आग है जो कि बेकाबू है और जो लोगों को और प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, सो यू कैन मेक अ कॉल ऑन द फायर ब्रिगेड नंबर एंड दे विल रश टू योर रश टू द प्लेस वेयर एवर द फायर इज देयर एंड दे कैन पुट इट ऑफ। ओके, सो ये कहीं भी आग लगी होती है तो उसको बुझाने के लिए आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स में दिखाते हैं, कभी किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है तो बहुत बड़ी बड़ी वहाँ पे जो फायर ब्रिगेड से बुलाई जाती हैं, ताकि जो पानी जो वो वाटर का प्रेशर है जिसकी हेल्प से वो वाटर को जो आग है उसको बुझाते हैं। ओके, सो फायर ब्रिगेड्स आर द ट्रेन पर्सन, वो ट्रेन पर्सन होते हैं। ओके, उनको इन ऐसी कंडीशंस के लिए ट्रेन किया जाता है सो दे कैन हेल्प द अदर्स दोज हु आर नीडी। ओके, सो द फर्स्ट मशीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज फायर इंजन, दैट इज द फर्स्ट वन, फायर इंजन। ओके, moving to the second one. Construction companies and the builders use a dash to mix raw materials like gravel, water and sand to create concrete. Okay, so जो construction companies होती हैं, ये जो builders होते हैं, इसको यूज़ करते हैं ताकि वो जो सीमेंट को बालू, पानी और ये जिसको बजरी बोलते हैं इन सबको मिला सकें। एंड देखिए जो कंस्ट्रक्शन, देखिए नॉर्मली अगर आपके हाउस में कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो जो मिस्त्री और मजदूर होते हैं वो सिंपली हाथ से अपने वो मतलब हाथ से या विद मैनुअली दे जस्ट मिक्स इट। ओके, बट व्हेन दिस कम जब कोई बड़ी बिल्डिंग्स की बात आती है तो वहाँ पे वो मैनुअली हाथ से मिक्स नहीं कर सकते, बिकॉज दे नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ दिस रॉ मटीरियल। तो उनको ये रॉ मटीरियल बहुत सारा होता है, उसको मिक्स करने के लिए उनको बहुत सारा एक ही टाइम पे उनको बहुत सारा ये चाहिए होता है। सो फॉर दैट दे यूज़ अ मशीन दैट इज़ नोन एज सीमेंट मिक्सर। सो सीमेंट मिक्सर इज़ यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑल द रॉ मटीरियल्स लाइक द ग्रेवल, वाटर एंड द सैंड टू क्रिएट कंक्रीट। तो कंक्रीट बनाने के लिए इन तीनों चीज़ों को मिलाया जाता है एंड स्पेशली जो बिल्डर्स होते हैं वो इनको यूज़ करते हैं, इन मशीन्स को यूज़ करते हैं सो दैट कि उनका रॉ मटेरियल है वो जल्दी बन जाए एंड दे कैन यूज़ दैट फॉर देयर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। ओके, सो द मशीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज़ अ सीमेंट मिक्सर। आपने देखा होगा ये बहुत सी ड्रम शेप का होता है एंड दैट इज़ वेरी ह्यूज मॉन्स्टर लाइक एंड वो बहुत बड़ा होता है। ओके, एंड दे आर मतलब ट्रक्स के ऊपर होता है वो, नॉट ऑन द नॉर्मल व्हीकल, दे आर ऑन ट्रक्स। ओके, वो बहुत बड़ा होता है, ह्यूज सा होता है। ओके, जब आपने कभी हाईवे या ये जो फ्लाईओवर्स हैं जब ये बनते हैं, जो फ्लाईओवर्स होते हैं या जो ये हाईवेज जब बनते हैं तो उस टाइम पे जो ये मोस्टली जो सीमेंट मिक्सर है दे आर बीइंग यूज्ड। सो द आंसर ऑफ द सेकंड वन इज सीमेंट मिक्सर। सीमेंट mixer, that is the second one. Moving next to the third one, a dash is used to lift, lower and move heavy materials. The most prominent part of this machine is long strong beam. Okay, so ये मशीन किस लिए यूज़ की जाती है? This machine is used for lifting, उठाने के लिए, नीचे करने के लिए और मूव करने के लिए, हिलाने के लिए। किस चीज़ को? ओके, जो हैवी चीज़ें होती हैं, जो मोस्टली हैवी चीज़ जो मटेरियल्स होते हैं दैट वी आर नॉट एबल टू मूव, जो ह्यूमन पावर है जिसको नहीं हिला सकती या उठा नहीं सकती, तो उन चीज़ों को उठाने के लिए ये मशीन यूज़ की जाती है। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट मशीन? सो दैट मशीन इज़ क्रेन। सो क्रेन है जो वो यूज़ की जाती है फॉर लिफ्टिंग द हैवी मटीरियल्स। तो भारी चीज़ों को उठाने के लिए वी यूज़ क्रेन। ओके, एंड स्पेशली आपने देखा होगा कि अगर कोई कभी
अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट होता है, कभी किसी बड़े व्हीकल, जो हम सिर्फ देखते हैं ट्रेन वगैरह के एक्सीडेंट होते हैं, तो आपने देखा होगा कि दैट आर नॉट पॉसिबल फॉर द ह्यूमंस टू मतलब टू पिक इट, उठाना पॉसिबल नहीं है. ओके, सो इन दैट केस द क्रेन इज बीइंग यूज्ड because they are heavy, very heavy, and the human power cannot carry it, so they use crane. Other than that, you have seen during the constructions on the roads. Okay, so जो लंबी ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी पाइप्स होती हैं, स्पेशली गोल गोल सीमेंटेड पाइप्स जो होती हैं, तो दे आर नॉट एबल, दैट इज़ नॉट पॉसिबल दैट द ह्यूमन, कुछ कितने भी लोग मिल जाए वो उसको उठा नहीं पाएंगे. सो उसके लिए वो क्या यूज़ करते हैं, दे यूज़ क्रेन. तो कोई भी हैवी मटीरियल उठाने के लिए दे यूज़ क्रेन. सो द क्रेन्स आर बीइंग यूज्ड टू लिफ्ट, लोअर, लिफ्ट मीन्स उठाना, लोअर मीन्स नीचे रखना, एंड मूव, हिलाना, हैवी मटीरियल्स, जो भारी मटीरियल्स होते हैं. एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ दिस मशीन इज ए लॉन्ग स्ट्रॉन्ग बीम. तो जिसके आपने देखो, जिसकी हेल्प से उठाते, वो बहुत ही लंबी सी एक होती है, जिसके आगे से वो, दैट इज इन दिस शेप, तो वो उसकी हेल्प से वो उठाते हैं. सबसे अच्छा पार्ट जो उसका यही है कि जिससे वो पूरा काम करते हैं, जिससे कि भारी से भारी मटीरियल उठा सकती है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल, इट इज़ गिवन हेयर. सो क्रेन देखिए, बड़ी, ये मोस्टली ये यूज़ होती है सी शोज वगैरह जो होते हैं, हमारे शी शोज होते हैं, जो पोट्स होते हैं, सी पोट्स होते हैं, वहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है टू पिक द हैवी मटीरियल्स. ओके, सो द क्रेन इज यूज टू लिफ्ट, मूव एंड लोअर द हैवी material. So the answer of the third one is crane. C-R-A-N-E, crane. Moving to the fourth one. A dash is a powerful machine used in road building, farming and construction. It consists of a heavy broad steel blade or plate mounted on the front of a tractor. Okay. तो नेक्स्ट मशीन जिसकी हम बात करें, बहुत ही पावरफुल मशीन है, और जो कि रोड्स बनाने के बाद फार्मिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के काम में यूज़ की जाती है. और इसकी जो आगे वाली जो इसके जो व्हील्स होते हैं, इसके ऊपर एक प्लेट्स की फॉर्म में बना होता है. ओके, प्लेट्स होती हैं, वो दे जस्ट मूव एंड इट मूव्स, तो उसके साथ साथ वो प्लेट्स भी मूव करती हैं. सो जो उसके व्हील्स होते हैं, उसके ऊपर ये प्लेट्स होती हैं जो साथ साथ मूव करती हैं. ओके, एंड ब्रॉड स्टील और द प्लेट माउंटेड ऑन द फ्रंट ऑफ द ट्रैक्टर. तो ये मोस्टली आगे मतलब दे जस्ट मूव. जैसे कि हम बात करें, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ, जो तोप होती है, तोप जो होती है जिसको हम बोलते हैं तोप होती है, जो सोल्जर्स आपने देखा होगा, तो जो तोप होती है उसको देखें ना, अपने टायर्स के ऊपर एक प्लेट्स बनी होती है, गोल सी रिबन टाइप्स. ओके, सो दोज आर द प्लेट्स. सो दिस मशीन ऑल्सो हैव प्लेट्स ऑन इट्स व्हील्स. ओके, एंड इट मूव्स. Okay, when it moves, it just moves along with those plates only. And other than that, this machine is very heavy, and it is used for farming, construction, and as well as for road buildings. So what is the name of this machine? So this machine is bulldozer. So this machine is bulldozer. Okay, so the next machine is bulldozer. B-U-L-L-D-O-Z-E-R. That is bulldozer. Moving to the fifth one. A dash is used to transport large quantities of water. Depending on its size, it can carry 11,000 liters to about 36,000 liters of water. So next machine जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि large quantity में पानी ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है, and that is water tanker. तो water tankers क्या होते हैं बेटा? They are being used for carrying the water इन द लार्ज क्वांटिटी. तो आप इसमें नियर अबाउट 11,000 लीटर से लेके 36,000 लीटर तक क्वांटिटी ऑफ वाटर यू कैन कैरी इन दैट. ओके, एंड दीज आर बीइंग यूज स्पेशली जो ड्रॉट एरियाज होते हैं, जहाँ पे सूखा पड़ता है, तो वहाँ पे ये वाटर टैंकर्स भेजे जाते हैं, सो दैट द पीपल दैट दे आर लिविंग इन दोज एरिया, दे आर नॉट सर्वाइव. तो उनको इस सूखे की वजह से उनको सर्वाइव, उनकी जो लाइफ है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो उसको ईजी बनाने के लिए, ताकि उनको पानी की कमी ना हो, तो दीज वाटर टैंकर्स आर बीइंग यूज्ड. ओके, सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस machine? This is water tanker, and it is used for carrying the large quantities of water, and the large quantity, and it depends upon the different size की उसकी capacity कितनी है. So the capacity starts from the 11,000 liters to up to 36,000 liter. So the answer is water tanker. W-A-T-E-R, water tanker.
Okay, so these are the answers from page number 30. Okay, and along with that there is tidbit is also given, and that is very important. A winter service vehicle, that is WSV, or the snow removal vehicle, is used to remove ice and snow, especially to clear roads. Okay, जो आपको पता है अभी हमारे इंडिया में तो इतनी नहीं पड़ती, इन शिमला इट इज़ ओके, जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, स्नो पड़ती है, तो वहाँ पे ये WSV, जिनको कि विंटर सर्विस व्हीकल्स बोला जाता है, वो यूज़ किए जाते हैं टू रिमूव द स्नो एंड द आइस फ्रॉम द रोड. तो सड़कों पे स्नो जम जाती है, जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है तो पूरी सड़कें हैं जो भर जाती हैं, तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द कार्स टू मूव देयर. सो इन दैट कंडीशन दीज विंटर सर्विस व्हीकल्स दीज आर बीइंग यूज्ड टू क्लीन द रोड्स. ओके, सो दैट द कार्स, द ट्रैफिक जो है, जो ट्रैफिक बंद हो गया है, जो ट्रैफिक लगा हुआ है, उसको क्लीन कर सके. ओके, सो द फुल फॉर्म ऑफ WSV इज विंटर सर्विस व्हीकल, एंड इट इज बीइंग यूज्ड फॉर क्लीनिंग द snow from the roads so that the cars and the other vehicles can move smoothly. Okay, so with this we have completed page number 30. So let's move to the next page, that is page number 36. So let's open your books at page number 36, that is working for a cause. Okay, so I'll just change the topic here. So that is working for a cause. किसी कॉज के लिए, किसी अच्छे काम के लिए कुछ काम करना. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक, वर्किंग फॉर अ कॉज, गिवन एट पेज नंबर 36. So class, kindly open your books at page number 36, that is working for a cause. Working for a cause का मतलब क्या होता है? मीनिंग कि कोई गलत चीज़ हो रही है, उसको रोकने के लिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग आंदोलन चलाए हैं, सो दैट दे कैन उन चीज़ों को बंद कर सके, कुछ लोगों की हेल्प कर सके. Okay, so for that we are going to talk about the various personalities or the various NGOs or social service institutes, जो social service organizations हैं, कि जो कि उन्होंने not for the peoples only, for the animals as well. So there are lots of organizations that are working for the well-being of the people as well as for the animals and the birds and the trees, for the nature, for the environment. Okay, so we are going to discuss about the various personalities as well as about the various organizations. They are working for the well-being of the mankind actually, and somehow they are related to the mankind only. Starting with the first one, Menka Gandhi leads this animal welfare organization. The organization aims to frame animal-friendly laws, protect animals from cruelty, upgrade facilities for the animals rescue and their shelter, and educate people about the animal welfare. So next जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी की leaders, this welfare organization, it works for the well-being of the animals. Animal की well-being के लिए, animals की help के लिए जो ये organization है ये काम करती है. Okay, so ये ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है, ये देयर मेन एम इज़ टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स. यू नो द एनिमल्स आर डेली बीइंग हरास्ड बाय द डिफरेंट पीपल. अभी आपने पीछे बहुत सारी न्यूज़ देखी होंगी दैट एक प्रेग्नेंट एलिफेंट वॉज किल्ड बाय द पीपल. ओके, उन्होंने उनको उन्होंने उसको एक पाइनएप्पल खिलाया था, उसके अंदर कुछ क्रैकर्स थे, एंड देन उसको जला के उन्होंने उसके पेट में डाल दिया था. लेटर ऑन वो क्रैकर्स जब उसके पेट में गए, दे जस्ट बर्स्ट, एंड दैट एनिमल अलॉन्ग विद हिज बेबी, हर बेबी, इट डाइड. ओके, एंड उसने बहुत सारा क्योस क्रिएट किया था. तो देखिए ऐसे लोगों से जो एनिमल्स को बचाने के लिए क्या कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग, गवर्नमेंट भी हैं एंड पीपल जो लोग हैं जो एनिमल से बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं सो दे कैन प्रोटेक्ट देम बिकॉज द एनिमल्स दे कांट स्पीक. तो वो बेजुबान जानवर हैं, उनको ऐसे क्रुएलिटी से बचाने के लिए उन्होंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं. ओके, एंड दिस इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स फॉर द वेलबींग ऑफ द एनिमल्स. एंड मेनका गांधी, शी इज द लीडर ऑफ दिस एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन. ओके,
ओके तो ये सिर्फ एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना नहीं है, इनका काम है अपग्रेड फैसिलिटीज़ फॉर द एनिमल्स रेस्क्यू। तो जो एनिमल्स कभी कहीं फंस जाते हैं, समटाइम देखना होगा कि कभी पानी में, कभी कुएं में, कभी नदी में कुछ एनिमल्स फंस जाते हैं, तो उनको बचाने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए भी उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं उसको अपग्रेड करना और उनको प्रॉपर होम, शेल्टर, घर जगह देना जहाँ की वो सर्वाइव कर पाएँ। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन? सो द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ People for Animals. So this is the name for this organization, that is People for Animals. This is the first one. People for Animals. Second one. This was a social movement in the year 1976 to protect the Silent Valley, a forest area in the Kerala, from being flooded due to the electric project. Okay, so next है जो कि एक social movement था जो कि start हुआ था in the year 1976. ओके तो ये एक साइलेंट वैली, एक वैली है जिसका नाम है साइलेंट वैली। वहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाया गया था इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बट उसकी वजह से क्या होता था कि एनवायरनमेंट को बहुत लॉस हुआ और इसकी वजह से वहाँ पे हर साल बहुत फ्लड आता था और लोगों को बहुत नुकसान झेलना पड़ता था। तो लोगों ने सोचा कि हर साल वो फ्लड झेलते हैं जस्ट ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सो दे जस्ट स्टार्टेड अपोजिंग इट। तो उन्होंने उसका अपोज करना, उसका खिलाफ अपोज मतलब उनके खिलाफ जाना शुरू किया। दे जस्ट स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट एंड लेटर ऑन दे वांट दैट इट शुड बी क्लोज सो दैट दे कैन गेट देमसेल्फ रिड फ्रॉम दिस ऑल दीज फ्लड्स दैट दे आर फेसिंग एवरी ईयर। तो हर साल जो फ्लड, वो जो बाढ़ वो हर लोग फेस कर रहे हैं इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की वजह से, वो अपने आप को उससे बचा सके। ओके सो ये जो मूवमेंट था ये स्टार्ट हुआ था एंड द नेम ऑफ दैट वैली वॉज साइलेंट वैली। ओके इस वैली का नाम था साइलेंट वैली और ये जो प्रोटेस्ट था और ये जो मूवमेंट था इट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1976। तो 1976 में ये है जो स्टार्ट हुआ था। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मूवमेंट? सो द नेम ऑफ दैट मूवमेंट वॉज सेव साइलेंट वैली। सो दिस इज द नेम। तो साइलेंट वैली उस जगह का नाम था, तो उसी के ऊपर ये मूवमेंट का नाम रखा गया था कि सेव साइलेंट वैली, साइलेंट वैली को बचाओ। सो दैट इज द नेम, दैट इज सेव साइलेंट वैली। Save Silent Valley, WALLEY, Save Silent Valley. Third one, this is United Nations Environmental Institution. It helps countries implement policies beneficial for the environment and preserve ecosystem and the atmosphere. ओके सो नेक्स्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं यूएन का एक इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूट है जो कि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। ठीक है, जो आपको पता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि वी आर एक्सप्लॉइटिंग द नेचर। सो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशन की एक एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूट है जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अलग अलग तरीके अपना रहा है, लोगों को अपग्रेड कर रहा है सो दैट पीपल दे मस्ट स्टार्ट यूजिंग द बायो डिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स एंड बायो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। तो लोगों को उसके बारे में जानकारी दे रहा है। सो दिस इज इट हेल्प्स कंट्रीज इम्प्लीमेंट पॉलिसीज बेनिफिशियल फॉर द एनवायरनमेंट एंड प्रिजर्व इकोसिस्टम एंड द एटमॉस्फेयर। इसके अलावा इसने अलग अलग पॉलिसीज बनवाता है, हर कंट्रीज में हेल्प करता है उनको, ताकि वो अपने कंट्री में, हर कंट्री अपनी कंट्री में अपनी कंट्री के इकोसिस्टम को, अपने कंट्री के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, सो दैट जो इन द लॉन्ग रन इट इज फॉर द गुड बीइंग ऑफ ह्यूमंस ओनली। Okay, so what is the name of this United Nation Environmental Institute? So this is United Nation Environmental Program. The full form is, the short form is UNEP, UNEP. Okay, and the full form is United Nations Environmental Program. United Nations Environmental Program. United Nation Environmental Program.
Okay, UNEP. This is the full form of UNEP, United Nations Environmental Program. Okay, let's move to the fourth one. Okay, for this you can just pause it here and write down the solution. Let's move to the fourth one. This animal rights organization is in Virginia, United States, works against cruelty towards animals and using of animal products for clothing. ओके, सो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल्स के राइट्स हैं, जो एनिमल्स के राइट्स हैं, उनके जो हक हैं, उनके लिए काम करती है. ओके, और ये कहाँ की है? दैट इट वर्क्स इन द वर्जीनिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स. तो ये दो कंट्रीज़ है, वर्जीनिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है. सो दे कैन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द एनिमल्स. एंड व्हाट इज़ देयर मेन एम? वो जो एनिमल्स के खिलाफ क्रुएलिटी हो रही है उसके अगेंस्ट ये है जो लोग या कोई भी जो कि किसी न किसी तरह एनिमल्स को हार्म कर रहा है, उनके अगेंस्ट ये काम करती है. एंड अदर देन दैट, जो एनिमल्स के जो फर हैं, स्पेशली द फर ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स, दीज आर बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग द ब्लैंकेट्स, फॉर द क्लोथिंग एक्सेट्रा. तो एंड फॉर द फ्लैश ऑफ एनिमल्स यू आर इवन यूज्ड फॉर दैट. जो एनिमल्स हैं उनको मार दिया जाता है ताकि उनका जो फ्लैश है उसको यूज़ करके कपड़े बनाए जाते हैं. ओके, लेदर है. ओके, एंड टाइगर की जो स्किन है दैट इज़ यूज, फर, मिंक, ऑल दीज एनिमल्स आर बीइंग किल्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स. ओके, सो ये जो PETA, दिस इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज PETA, PETA. ओके, बट द फुल फॉर्म इज पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट of animals, people for the ethical treatment of animals. This is the full form of PETA. Okay, जो ये वर्क करती है, it works for the well-being of the animals. जो एनिमल्स के साथ जो क्रुएलिटी हो रही है उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाएगी और ये उनके अगेंस्ट काम करती है, उनके लिए लीगल एक्शंस लेती है. एंड अदर देन दैट ये दिस ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द, मतलब ये अगेंस्ट प्रोटेस्ट करती है कि दैट जो एनिमल मेड क्लोथ्स हैं दैट शुड बी अवॉइडेड, दैट शुड बी बैंड. ताकि जो लोग हैं वो एनिमल्स की स्किन से बने, उनके फर से बने हुए जो कपड़े हैं वो ना पहने. अगर ये ऐसा होगा तो वो उनको मारा भी नहीं जाएगा, लोग उनको मारेंगे भी नहीं, उनके जो एनिमल्स की स्किन है, फ्लैश नहीं चाहिए होगी, तो दैट मीन्स दे विल नॉट बी किल्ड अल्टीमेटली. ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन? दैट इज PETA, PETA. फुल फॉर्म इज पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ animals. That is the fourth one. People for the ethical treatment. People for the ethical treatment ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स के साथ कुछ एथिकल ट्रीटमेंट हो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करती है. ओके, नाउ मूविंग टू द लास्ट वन, दैट इज द फिफ्थ वन. दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टुवर्ड्स protecting the ecosystem and the habitat of on earth. It is present in the 100 countries and is supported by the 1.2 million members in the United States and close to 5 billion globally. It is the world's leading conservation organization. So next organization जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इकोसिस्टम को, हमारे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए और अदर इसके अलावा जो हैबिटेट्स हैं, अलग अलग एनिमल्स के रहने की अलग अलग कंडीशंस होती हैं, तो उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर दैट. ओके, एंड इसके नियर अबाउट ये ऑर्गेनाइजेशन कितने कंट्रीज़ में काम करती है? नियर अबाउट 100 कंट्रीज़ में जो ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है. और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में ही इसके 1.2 मिलियन नॉट बिलियन, 1.2 मिलियन मेंबर्स सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में ही हैं. इसके अलावा 5 मिलियन लोग हैं जो पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में 5 मिलियन लोग हैं जो इसके लिए काम करते हैं. ओके, एंड सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में देयर आर ओनली 1.2 मिलियन. Okay, so this is the world's biggest organization that works for the protection of the ecosystem as well as for the habitats on the
अर्थ, और ये दुनिया की सबसे बड़ी कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन है. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन? दैट इज WWF, दैट इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर. वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर. वर्ल्ड वाइड फंड फॉर nature. Okay, chaliye. So rest of the points we are going to do in the next session. Okay, so with this I'm just ending the session here only, class. So I'll see you again very soon in our next session. So till then everybody, have a good day.